तो फिर की हो गया देने नहीं किसी ने वोट भैन इन्होंने चोरों ने भैन चो महंगाई कर छड़ी थोड़ी कर छड़ी है शेर दा महंगाई तो वोट इमरान नवाज शरीफ दिता है हूँ नहीं देना नहीं देना ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਨਾ ਵੋਟ ਲਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲਏਗਾ ਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰੋੜ ਛੜਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ इमरान खान ने ਜੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਵੋਟ इमरान खान भाई भाईजान अस्सलाम वालेकुम हाँ भाई मौजूदा हालात में इलेक्शन हो तो वोट किसको देंगे हम देखें मरकज़ी मुस्लिम लीग वालों को ये मौजूदा हालात में इलेक्शन हो तो वोट किसको देंगे PTI पीटीआई को जी भाई आप किसको वोट देंगे जी भाई इंशाल्लाह इमरान खान साहब को वोट देंगे जिनका नाम लेने से भी वो केस होते हैं मुकदमे होते हैं इंशाल्लाह उनको वोट देंगे इमरान जी भाई आप किसको जी भाई इंशाल्लाह इमरान खान लेकिन इमरान खान तो जेल में है कोई बात नहीं हम साथ हैं उनके तो बस इंशाल्लाह जल्दी ही उन्होंने बाहर आ जाना तो बस इंशाल्लाह हम उनको ही वोट देंगे उनको ही सपोर्ट करेंगे जब तक हम जी रहे मौजूदा हालात 'ਚ इलेक्शन हो तो वोट किहਨੂੰ ਦਿਓਗੇ अब वोट पर सारा को तंग पै गए हैं तंग पै गए हैं क्यों दे कि ना चाहिए सारा चोर बैठे क्यों चाहिए पर लेकिन वोट तो किसी ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ ਕੋਈ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਨਾ आर्मी जो घूमो तो छो परा वोट वोट जिन्होंने मारी दो फिर उत्थे काम करना ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਦਵਾਂਗੇ PTI ਨੂੰ ਹਾਂ जिन्हें बहालना सरकार उन्हें बहालना एवं तो खज्जल होंगे पे कहानियां लम्मियां ना पाओ जिन्हों को है उन्हें कराना जो कराना है तो वोट छोड़ो वोट किन्हें पुछना कोई नहीं वोट पुछता देखो गल की होता जो मर्जी बहा देना हेलो काम खत्म चलो ठीक बहुत शुक्रिया अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम अंकल जी मौजूदा हालात 'ਚ इलेक्शन हो तो वोट किहਨੂੰ ਦਿਓਗੇ वोट इंशाल्लाह नॉन लीग ਨੂੰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਲੇਕਿਨ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਾਲੇ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਹਿਲੇ ਬਾਰ ਸੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪੀਡੀਐਮ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਖਤਮ ਹੋਈ ਦੇਖੋ ਨਾ- ਨੌਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ 4 ਦਫਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਉਤਾਰਿਆ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਦਵਾਂਗੇ ਪੂਰੀ ਆਬੋ-ਤਾਬ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 13-14 ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ ਕੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਅਕੇਲੀ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਹੈ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਅਗਰ ਅਕੇਲੇ ਕੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗੀ ਜੀ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਹੁਣ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ वापस आने या ना आने लेकिन आवाम का नजरिया तो है ना 26 करोड़ आदमी के एक वास्ते है ना कि मुल्क ने डिलीवर करना है उन्हें नजरियात उन्हें ख्यालात इन्होंने प्रमोट करांगे इंशाअल्लाह ताला ਭਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਬਹਰਹਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਵੋਟ ਦਿਆਂਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਵੋਟ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਈਏ ਤੇ ਜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਜੀ ਅਮਜਦ ਵਾਲ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿਓਗੇ नवाज शरीफ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਪਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲ ਗਏ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਆ ਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਣਗੇ इमरान खान को इमरान खान को भाई आप किसको वोट इमरान खान को दा हालात में इलेक्शन हो तो वोट किसको देंगे शेर को शेर को खान साहब किसको वोट देंगे पीटीआई पीटीआई को भाई आप किसको वोट देंगे भाई किसी ने भाई आप किसको देंगे जी भाई आप किसको वोट देंगे पीटीआई को शेर पीटीआई अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई मौजूदा हालात में इलेक्शन हो तो वोट किसको देंगे मैं जो हकदार है उसको देने हकदार कौन नज़र आ रहा है अभी तो कोई भी नहीं आते नज़र अभी तो कोई भी नज़र नहीं आते मुल्क का हालात इस तरह होते तो कोई भी नज़र नहीं आते
अभी निगरान हुकूमत आई है, नहीं है हुकूमत, पिछली वाली चली गई है, क्या लगता है ये ठीक होगी हमारे लिए? अभी तो देखिएगा हालात किस तरह होते हैं, हुक्मरान कैसे होते हैं, हम कैसे बोलते हैं, इस तरह काम जारी है इंशाल्लाह। आते ही नई जो हुकूमत आई है, आते ही इसने 17 रुपये 50 पैसे पेट्रोल महंगा कर दिया। महंगाई का तो कोई मुश्किल नहीं होते हैं, लेकिन हालात जिस तरह होते हैं, हर जगह में धमाके, हर जगह में हर गरीब परेशान होते हैं, उसके लिए होते हैं। भाई आप वोट किसको देंगे? बस वो जो मुनासिब होगा उनको देगा ना। अभी मुनासिब नहीं नज़र आ रहा। अभी किधर मुनासिब है, हर जगह में हालात शुरू है, गुर्बत ज़्यादा है, ठीक है ना, पता चल जाएगा क्या हालात होगा क्या नहीं, उस टाइम देखेगा। मेरे तो पंजाब में होते भी नहीं, मैं जाऊंगा उधर वोट डालूंगा ना, इधर तो होते भी नहीं ना। हाँ ये मौजूदा हालात में इलेक्शन हो तो वोट किसको देंगे? वोट भाई फिल वक्त तो खान साहब ही हैं। खान साहब ही। लेकिन खान साहब तो जेल में हैं। जेल में तो कौन आ रहा है, जो भी आए, कोई भी है। फायदा तो हमें कोई नहीं, लेकिन देने ज़रूरी होते हैं। लेकिन देना जरूरी, जो भी आए वेलकम है। जो भी है। हम लेकिन अभी तो आप कह रहे हैं खान साहब को वोट देना है। वो जेल में है ना, मुझे सॉरी याद नहीं था, मैंने समझा ऑन ड्यूटी है, मगर वो जेल में। तो कोई नहीं, इंशाल्लाह जो भी हैं सब भाई बहन हमारे, देश के लिए हम वोट क्या हेल्प भी करेंगे, नारे भी लगाएंगे उनके। मौजूदा हालात च इलेक्शन हो तो वोट किनू दिओ? मैं तो ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਉਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ। इमरान खान तो जेल च। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ, ਭੈਣ ਹੀ ਆਖਣੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਚੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰ ਛੜੀ, ਥੋੜੀ ਕਰ ਛੜੀ ਹੈ। महंगाई ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਸ਼ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। लेकिन महंगाई तो इमरान खान ने भी की थी। ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਉੱਤਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਹਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਨਪੜਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਪੜ ਬੰਦੇ ਆ। शहबाज शरीफ जो उतरिया ही वो कह रहा है कि इंशाल्लाह दोबारा मौका मिले तो फिर दोबारा इमाम की खिदमत। ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਨਾ ਵੋਟ ਲਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਸਾਡਾ ਵੋਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਲਏਗਾ, ਨਾਲੀ 'ਚ ਪਾ ਰੋਡ ਛੜਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਆਵੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹੀ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम भाई। मौजूदा हालात च इलेक्शन हो तो वोट किनू दिओगे? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛੇੜਦੇ ਆ पक्के। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। लेकिन वेखो नवाज शरीफ साहब पहले बाहर सी, हुण शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हुई है, वज़ीर आज़म सी उधर ने तो वो भी बाहर चले गए ने। ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਆਣਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਨੇ ਨਾ, ਆਣਾ ਤੇ ਘਰ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀ ਜਾਣਾ। ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਤਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਡੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਾਹਦੀ ਚੋਰੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੋਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੱਸ ਗਏ ਨੇ ਇਥੋਂ, ਛੱਡ ਛੁਡਾ ਕੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇਦ ਛੱਡ ਕੇ ਨੇ। ਹੈ ਸ਼ੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਾਤ ਨੇ, ਕੱਖ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਏ, ਅਈਏ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੇਰ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚਮਚੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਸ਼ੇਰ। हालात में इलेक्शन हो तो वोट किसको देंगे आप? वोट किसको देंगे? जिसने मुल्क का सोचा है, मियाँ नवाज शरीफ मियां नवाज शरीफ ने सोचा। जी। लेकिन वो तो बाहर बैठा हुआ है। बाहर बैठे हैं, लेकिन इंशाल्लाह आएंगे। आएंगे। ऐसे तो शहबाज शरीफ साहब भी चले गए हैं, वो भी आएंगे। वो भी आएंगे इंशाल्लाह। वो अपने कानूनी वक्त पूरा करके गए हैं। 5 साल अपना जो टाइम पीरियड था हुकूमत का, अपने हिसाब से जब से आए थे अपना पीरियड पूरा करके गए हैं। लेकिन उन्होंने महंगाई बहुत ज़्यादा कर दी है, आवाम तंग पड़ी हुई है। महंगाई उन्होंने की है। खान साहब के आपने बयान नहीं सुने कि डॉलर 300 से ऊपर जा सकता था, आज से 2 साल पहले खान साहब बता के गए हैं। लेकिन उन्होंने कंट्रोल भी तो किया था ना। क्या कंट्रोल किया था? लेकिन उन्होंने देखे ना अवाम के लिए जाते क्या कंट्रोल किया था उन्होंने? लेकिन उन्होंने अवाम के लिए बहुत सारी सहूलियत छोड़ी थी। फी बंदा 14,000 मिल रहा था, सेहत कार्ड था 10 लाख तक सालाना। सेहत कार्ड से उन आम आवाम को क्या फ़ायदा, सिवाय प्राइवेट हॉस्पिटलों के। सरकारी हॉस्पिटलों को तबाही मचा दी सरकार, प्राइवेट हॉस्पिटलों ने कमाई की है पूरी। क्या फ़ायदा हुआ उस सेहत कार्ड का भी गरीब आवाम को? क्या लेकिन गरीब आवाम जब भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती थी, सेहत कार्ड पे डॉक्टर की फ़ीस उनको अलहदा देनी पड़ती थी और सहूलियात अलहदा देनी पड़ती थी पॉकेट मनी से। क्या सहूलियात थी वो? लेकिन वो है कि वो सेहत कार्ड भी अगर था तो वो भी नवाज शरीफ का ही विज़न था, वो उसी पे अपना ठप्पा लगा के आया।
नवाज शरीफ पास तो वैसे भी उनके फंड नहीं है। क्या हालात है KPK के? लेकिन वफाक का तो बनता है ना उनको फंड दे। भाई वफाक का था, लेकिन ये बताएं जो वो बारूदी सुरंगें फैला के गए हैं, वो ख़ुद शेर रशीद बता रहा है, इमरान खान बता के गया, ये सुरंगें बचा के गए हैं। IMF की जो तकरीबन 1.5 साल भी एक ही चीज़ के पीछे पड़े थे कि IMF की जो डील वो हो जाए। जाते जाते आखिरी दिन में उनको डील मिली है, तो वो क्या करके जाते हैं? जितनी बारूदी सुरंगें उनको बचा के गए हैं खान साहब, अब थोड़ा काम करके गए हैं ये 2 साल में। वो खुद ही मानते हैं, सारे मानते हैं कि वो क्या करके गए हैं। लेकिन आखिरी बात आप मुझे बता दें कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब वापस आके इलेक्शन लड़ेंगे? इंशाल्लाह ज़रूर लड़ेंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह भरपूर। PDM ही होगी या नून लीग अलहदा लड़ेगी इलेक्शन? वो PDM क्यों, अलग-अलग लड़ेंगे हम। जी बिल्कुल। PDM तो थी एक हुकूमत उस वक़्त के लिए, जो जिसके सदर साहब फजल रहमान साहब थे, वो एक मुश्तरका, जबकि उन्होंने तहरीकत में इत्मीनान पेश किया। तहरीकत में इत्मीनान के बाद जो है ना वो चल रही थी जब तक वो हुकूमत चली है 2 साल। अब जब इंशाल्लाह जनरल इलेक्शन आएंगे तो सब अपनी अपनी पार्टियाँ अपना अपना इलेक्शन लड़ेंगी। हाँ, ये भी हो सकता है कि अगर कहीं वो सीट एडजस्टमेंट करते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ हल्कों में पहले भी होता है, वो पहले जैसे हो रहा है वैसे ही हो सकता है। जी भाई, तो ही वोट क्यों दोगे? इमरान खान। जी भाई, आप किसको वोट देंगे? मैं तो किसी को भी नहीं दूंगा। किसी को भी नहीं। ये अच्छी बात ही नहीं, किसको भी नहीं देगा। हालात में इलेक्शन होती है, आप वोट किसको देंगे? इलेक्शन करा के ही करने जाके मुल्क के हालात खराब ने की मसलन बिल आ गए ने, इन्ने ज़्यादा बिल आ गए ने, गरीब आदमी का गुजारा बड़ा मुश्किल है। तो उन्होंने अपनी पई देखो सारा माल लुट के पाकिस्तान का खा गए ने, तो हुण अदा करना पे मारे बंदे नूं। बिल इन्ने ज़्यादा, हुण 15-20 हज़ार तो बिल किसी को घट नहीं आया। बड़ा मुश्किल गरीब आवाम गुजारा कर रही है सारे। देखें ना, महंगाई तो है ना, आप किसी अच्छे बंदे को वोट देते हैं, वो बंदा आएगा कोई ना कुछ करेगा महंगाई के लिए। अच्छा कौन है? कौन? आपकी नज़र में कोई अच्छा बंदा नहीं है? हमारी नज़र से कोई भी अच्छा नहीं है। ना हुआ है भाई, आप वोट नहीं देंगे किसी को? वोट नहीं देंगे किसी को? जब वक्त आएगा देखेंगे। मैं इलेक्शन हूँ तो वोट किसको दें? किसी का भी नहीं। भाई किसको? वो वोट PTI ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ। जी भाई, आप वोट किसको दें? PTI हालात में इलेक्शन हो तो वोट किसको देंगे आप? इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। हालात में अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट किसको देंगे आप? वोट बबर शेर है। बबर शेर। मौजूदा हालात से मुतमिन है? अंकल जी, मौजूदा हालात में इलेक्शन होते हैं तो आप वोट किसको देंगे? इस बार तो मेरा हाल है कुछ किसी को कहना ही नहीं कि किसी ने भी नहीं देना चाहते, क्योंकि किसी ने भी नहीं, कोई भी नहीं सही है, सब बेसरा ही ने। अल्लाह करे ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਦੇਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਨੂਨ ਲੀਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ लेकिन अब नहीं देना नून लीग को? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ वोट ज़ाया कर छड़ना नहीं देना। जो हालात जा रहे हैं आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी ट्रांसपोर्ट है, हमारी ये 8 दिन से हम लोग इधर ही खड़े हैं। ये जाएगी तो हम लोग खाएंगे ना, जब ये जाएंगे तो खाएंगे। एक दिन भी बंदा जाए, चलो 2-4 दिन वास्ते तो बन जाता है ना, तो लेकिन एक दिन भी ना जाए तो फिर तो हम ऐसे ही करेंगे। शाम को सोते हैं, दिन को उठते हैं, पता चलता जी पेट्रोल महंगा हो गया। हम सोते हैं सुकून की, सुबह उठ के पता चलता जी 20 रुपये पेट्रोल बढ़ गया। जो महंगाई हो गई है, यकीन करें हर गरीब आदमी का मुश्किल हो गया गुजारा। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं, बंदे की सोच से भी ज़्यादा। बंदा सोचता कुछ है होता कुछ है, लेकिन जो हालात हो गए हैं ना, मेरा ख्याल आने वाले वक्त में भी इससे भी ज़्यादा हालात टाइट होंगे। फिलहाल हम यही देख रहे हैं कि हर बंदा यही परेशान है कि महंगाई इतनी ज़्यादा है, पेट्रोल बढ़ गया है, बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। हर टाइम ना हमें बुखार ही चला रहता है, बस हर टाइम बुखार ही चला रहता है बस कि या अल्लाह ये बुखार कब उतरेगा। बुखार तो उतरेगा जो डंडा जब गवर्नमेंट ने दिया होगा, जब डंडा नहीं देगा तो सारे निज़ाम ऐसे ही होना है ना। तो आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, हर बंदा परेशान है, जिससे भी पूछे वो यही कहता है कारोबार है ही नहीं है। एक बात सुनिए ना, अगर आप किसी अच्छे बंदे को वोट देते हैं, वो आता है, वो आगे कुछ करेगा ना, तो अच्छे बंदे को वोट दे के करेगा क्या? करना तो गवर्नमेंट नहीं है, जो आगे गवर्नमेंट है, करना तो उसने ही है। अच्छे बंदे को हम तो सिलेक्ट कर लेंगे, अच्छे बंदे ने आगे गवर्नमेंट के पास ही जाना, कौन सा घर बैठ के सारा कुछ कर देना है। ब्रदर, अगर हम किसी MNA या MP को सिलेक्ट करते हैं तो वो किसके पास जाएगा? पार्टी के पास, बड़ी पार्टी के पास ही जाएगा ना, जो मौजूदा हुकूमत होगी उसके पास जाएगा। तो इससे बेहतर है कि ना ही वोट दें, वोट ज़ाया कर लें, वो बेहतर। ये जो एरिया ना, ये पूरा नून लीग का घर है, ये नून लीग का सही है। मेन चीज़ है कि निज़ाम बहुत ख़राब हो गया हुआ है, बहुत ज़्यादा ये ख़राब हो गया है और ये ख़राब ही रहना है।
ये नहीं सही हो सकता, ये कभी भी नहीं सही होना। सही बात है, हम गुलाम बन गए, ज़हनी गुलाम बन गए हुए हैं, बिल्कुल गुलाम ही हमने रहना है, क्योंकि ये माहौल इस तरह का बन गया हुआ है कि हम उठ नहीं सकते अब, समझे कि नहीं। इलेक्शन आ रहे हैं, ये जो भी है सब लोगों ने आना है, हमें पता सब लोग आएंगे। ये महंगाई है, ये महंगाई कम नहीं करनी, महंगाई को कंट्रोल ना करना, ये लोग बेकार हैं, मैं कहूँगा बेकार हैं, सब बेकार हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, ये बेकार हैं भाई। हमारी ट्रांसपोर्ट में कह रहा हूँ, ट्रांसपोर्ट ही चल रही है, ये देखो ना पेट्रोल किधर चला गया है। मैं एक हफ्ते से इधर खड़ा हूँ, एक हफ्ता हो गया मुझे, तो बुखार ऐसे हो फुल बुखार है, घर में जाकर डेली मैं लड़ता हूँ मैं, ज़ाहिर बुखार हो गया हुआ है, ये टेम्परेचर ऊपर चढ़ गया हुआ है, महंगाई ने मत मारी हुई है, तो ज़ाहिर फिर इस तरह का माहौल हो तो फिर हम लोग इनको कैसे हम लोग इनको चूज़ करेंगे।